बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो जाता है, वो ये कि परमात्मा को धरती पर क्यों आना पड़ा। परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, वो ऊपर से ही सब कार्य कर सकते हैं। बहुत से लोग ये मानते भी हैं, वह कहते हैं परमात्मा तो धरती पर आता ही नहीं और उसको धरती पर आने की क्या आवश्यकता है। वो यही आवश्यकता है जो हमने बताई कि मनुष्य आत्माएं भटकती रहती हैं, अपने ही अनेक प्रकार के उपाय करती रहती हैं, और रिजल्ट हम देख सकते हैं कि जन्म जन्मांतर से अगर हम आज भी देखें, अनेक प्रकार के उपाय हम तीर्थ स्नान, यात्राएं, दान, पुण्य, क्रियाएं, जो कुछ भी हमें बताया गया है, जप तप, शास्त्र अध्ययन, गुरु करना, लेकिन भारत पावन तो बना नहीं, ना भारतवासी मुक्त हुए। सत्य में ही प्रेम है, सत्य ही शांति है, सत्य ही पवित्रता है, सत्य ही निडरता है। जो सच्चा होता है उसमें सरलता और सहजता होती है। सच को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो तो स्वयं ही अपने आप को प्रूव कर देता है, क्योंकि सच तो एक सूरज के समान है जिसे कोई भी नहीं छिपा सकता, और जितनी जितनी सत्य की रोशनी बढ़ती है तो ये सभी चीज को काट देता है, अर्थात असत्य को काट सत्य का एटमॉस्फेयर बना देता है। क्योंकि सत्य कर्म जो हैं वो ही सत्य एटमॉस्फेयर बनाते हैं, और सत्य कर्म का मतलब ही होता है कल्याणकारी कर्म। वो स्वयं से शुरू होते हैं और फिर हमारे आसपास फैलते हुए पूरे विश्व में फैल जाते हैं। इसीलिए ही कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, क्योंकि सत्य ही सब कुछ है। परमात्मा भी जो नई दुनिया बनाते हैं तो उसे सत्य अर्थात सत्युग को भी सचखंड ही कहते हैं। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान।
सब झंडों को एक करे जो, वो यह झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब झंडों को एक करे जो, वो ये झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब करते हैं उसका ध्यान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। शिव 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 शिव। शिव 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 शिव। Out of all the festivals that we celebrate, Shiva Jayanti or Maha Shivaratri is considered to be the most important festival, and it is sometimes also called Diamond Festival, because it is the reincarnation of God Shiva on this earth that is celebrated in the form of his birthday. In Bhagavad Gita, they say whenever there is irreligiousness, unlawfulness, God himself descends in the land of Bharat to destroy irreligiousness and to establish one religion. So the present time that we are passing through is the same time, end of Kali Yuga and beginning of golden age, which is called confluence age. This is the time of God's incarnation according to his promise in the Gita. They say when the sun of knowledge appears, the darkness dispels. So definitely God, the sun of knowledge, brings the light of knowledge on this earth to dispel the darkness in the form of ignorance. Shivratri is also celebrated with particular customs and systems, like for example, waking up whole night, or chanting the name of Shiva, or fasting. All these are the customs connected with Shiv Jayanti. So, in fact, we can take the inspiration as we celebrate this year's Mahashivratri to dispel the darkness in the form of ignorance from our life and bring light into ourselves. So we are able to know ourselves, know God, and know His creation. So once I am able to know myself and know God as He is and connect myself with God, I am able to receive a God-fatherly inheritance of 100% purity, peace, and prosperity in my life. So let us celebrate this year's Mahashivratri as the day of dispelling the darkness and bringing light into our life. In other words, let us feel that we are taking a new life as we recognize ourselves, who we are, and recognize God's. I hope that this Shivratri will inspire you to seek for knowledge and remove the darkness and make your life a life like diamond, full of happiness, peace, and prosperity. I wish all of you a very happy Mahashivratri celebrations. Thank you. Om Shanti. भगवान के लिए भी हम गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम।
और क्योंकि भगवान खुद ही सत्य है, तो उसे पसंद भी सच्चे दिल वाले ही आते हैं और सच पर ही वो कुर्बान जाता है, न्यौछावर होता है। झूठ चाहे कितनी ही सफाई से क्यों न बोला जाए, कितनी ही अच्छी तरह से पेश क्यों न किया जाए, झूठ तो झूठ ही रहता है। सच उसे कहते हैं जिसके कहने बोलने से कल्याण हो, और झूठ उसे कहते हैं जिसके कहने से किसी आत्मा का अकल्याण हो जाए। कल्याण अर्थात जिसमें आत्मा की उन्नति हो, आंतरिक रूप से तरक्की हो, जिस काज से हमारी खुशी बढ़े, हमारे मन को शांति की अनुभूति हो, हमारा पुण्य का खाता बढ़े। और पुण्य का खाता हमारा तब बढ़ता है जब हमारे भीतर हर काज के प्रति प्रेम भाव हो, स्वार्थ या फिर लाभ हानि की भावना ना हो। तुमने ही दिया है सब कुछ मुझको, जीवन सांसें और मुस्कान। तुमने दिया है सब कुछ मुझको, जीवन सांसें और मुस्कान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। इस खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। शिव 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 शिव। अभी हम बच्चे अलबेलेपन में आकर अपने ही भीतर बैठे रावण को राम समझने की गलती ना करें। रावण राज्य के समाप्त होने से पूर्व हम रावण के संस्कारों को, स्वभाव को, रावण जैसी सोच, चाल चलन को सब कुछ छोड़ दें। अन्यथा बाद में इससे छूट पाना भी मुश्किल हो जाएगा और बहुत दर्दनाक भी। हमारा शिव है लखदातार, हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है कर्ण करावनहार, हमको काहे की चिंता। शिव 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 शिव
शिव शिव। परमात्मा के बारे में जब भी बात निकलती है बहुत कंफ्यूजन तो रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मतें हैं परमात्मा को लेकर के। लेकिन इतने सारे मत होने के बावजूद भी सभी का कहना क्या है? परमात्मा एक है, गॉड इज वन। जब परमात्मा एक है तो उनका अस्तित्व भी एक होना चाहिए। भले कहीं बातें निकलती है, अवतार है, वो है, ये है, लेकिन अस्तित्व जो है वो एक होना चाहिए। अभी हम बच्चे अलबेलेपन में आकर अपने ही भीतर बैठे रावण को राम समझने की गलती न करें। रावण राज्य के समाप्त होने से पूर्व ही हम रावण के संस्कारों को, रावण के स्वभाव को, रावण जैसी सोच, चाल चलन को, सब कुछ को छोड़ दें। अन्यथा बाद में इससे छूट पाना मुश्किल भी हो जाएगा और बहुत दर्दनाक भी। हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार, गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। जन की प्यास बुझे, जन जन की प्यास बुझे, ज्ञान अमृत पीकर तन मन पावन हो गए। याद में तेरी जीकर, याद में तेरी जीकर, गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। भारत में उसको ज्योति स्वरूप, सूक्ष्मति सूक्ष्म, निराकार के रूप में माना जाता है। तो देखिए मुस्लिम धर्म में भी नूर इलाही, नूर एक ज्योति, परम ज्योति है वो। क्रिश्चियंस के लिए तो है ही प्रसिद्ध उनकी मान्यता, गॉड इज लाइट, वो एक महाज्योति है। क्राइस्ट जी ने भी यही कहा था ब्रदर जी कि गॉड इज लाइट एंड आई एम सन ऑफ गॉड। उन्होंने कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। बौद्ध धर्म का भी एक संप्रदाय है, एक पंथ है उसका, जो भी जब वो ध्यान लगाते हैं तो शिवलिंग जैसा ये गोल पत्थर सामने रखते हैं। तो वास्तव में परमात्मा एक ही है, उसके पास धर्मों का भेदभाव नहीं है, उसके पास जाति का या देशों का भी भेदभाव नहीं है। और भी छोटे छोटे बहुत सारे धर्म हैं, सब में परमात्मा को किसी न किसी तरह ज्योति स्वरूप अवश्य माना गया, वो प्रकाश है। शिव बाबा हम बच्चों को सर्वशक्तिमान बना रहा है। एक है सर्वशक्तिमान और दूसरा है शक्तिमान।
शक्तिमान अर्थात अपनी शक्तियों का अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा किसी भी रीति प्रदर्शन कर पॉजिटिव रूप से आत्माओं का कल्याण करना। और दूसरा है सर्वशक्तिमान अर्थात बाप समान स्थिति, अर्थात बेहद की शक्तियां होते हुए भी सभी शक्तियों को स्वयं में समा लेना, अर्थात अपनी शक्तियों का प्रयोग सूक्ष्म रीति करना। हमें इस बात का ज्ञान है कि 5 तत्वों के तन द्वारा अपनी शक्तियों को यूज करते ही हमारी सूक्ष्म शक्ति की कमाल बहुत कम रह जाएगी। इसीलिए हमें शांत स्थिति में स्थित रहे, अपने संकल्पों की पावर द्वारा सभी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनना है। जिस आत्मा को जिस दिव्य गुण व शक्ति की जरूरत होती है उसे वही गुण और शक्ति का दान दे, हम उसके कल्याण के निमित्त बन जाते हैं। जब हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों की कमाल को भली भांति जान लेंगे, तब ही विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। दुनिया में तो मनुष्य सुख के सहयोगी होते हैं, दुख के नहीं। परंतु परमात्मा शिव बाबा दुख के समय आकर हमारा सहयोगी साथी बन जाता है और हमें सुखों की तरफ ले जाता है, हमारे अंदर बैठे सारे दुखों का निवारण कर देता है। इसीलिए तो परमात्मा को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। बाबा हमारा दुख का सहयोगी है, सुख का नहीं। जागो जागो हे जागो जागो हे जागो जागो हे भाई बहनों जागो जागो, शिव जयंती आई बधाई सबको बधाई, जागो शिव जयंती आई बधाई सबको बधाई। प्रकट हुए शिव ब्रह्मा मुख से ज्ञान की गंगा बहाई, शिव जयंती आई शिव जयंती आई बधाई सबको बधाई। जब जब होती हानि कल्प की अंतिम वेला आती, कल्प
अंतिम बेला आती। चढ़ती कला से उतर के गिरती, पावन रूह पतित बन जाती। पावन रूह पतित बन जाती। द्वापर में माया से श्रापित हर आत्मा चिल्लाई, जागो शिव जयंती आई, फिर से शिव जयंती आई। शिव 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 शिव। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। सारे वर्ष में जो भी त्योहार हम मनाते हैं उसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य अवश्य छिपा हुआ होता है। इन रहस्यों को जानकर सभी त्योहारों को हम यथार्थ रीति मना सकेंगे और फिर उन त्योहारों का हमारे जीवन में महत्व भी बढ़ता है। जैसे कि ये महाशिवरात्रि का महान और पावन पर्व है। इस पर्व को मनाने के लिए भक्तजन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, अख के फूल, दूध आदि चढ़ाते हैं। इस दिन उपवास रखते हैं, फिर रात को जागरण भी करते हैं। पर हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि इस महाशिवरात्रि पर्व पर ये सब पूजा क्रियाएं आदि क्यों की जाती हैं। हमने ये सब जानने का प्रयास इसलिए भी नहीं किया क्योंकि ये सब पूजा विधि हम एक दूसरे को देखकर ही करते आए हैं और इसे गहराई से समझने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। और एक और महत्वपूर्ण बात जो कि एकदम विचारणीय है, वो ये कि जब भी हम किसी महान विभूति का जन्मदिन मनाते हैं तब हम उस पर्व को जयंती कहते हैं, परंतु महाशिवरात्रि एकमात्र ऐसा पर्व है जिसे कि हम शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? तो आइए फिर महाशिवरात्रि को मनाने के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य हैं उसे हम आज जान लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि शिव का वास्तविक और यथार्थ परिचय क्या है। वे कौन हैं, कहां रहते हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, उनके कर्तव्य क्या हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के जब तक यथार्थ यानी कि सही उत्तर हमें प्राप्त नहीं होंगे तब तक शिव जी का परिचय भी अपूर्ण है, अयथार्थ है। परमात्मा शिव, जिनका की वास्तविक स्वरूप ज्योति बिंदु है, वे तो निराकार हैं। परमात्मा शिव निराकार होने के कारण उनकी पूजा आराधना हेतु लिंग रूप में एक प्रतिमा बनाई गई। यहाँ निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार ही नहीं है, परंतु इस शब्द को आकार शब्द के प्रतिपक्ष में कहा गया है। इसका भाव सिर्फ यही है कि उनका न कोई सूक्ष्म आकारी स्वरूप है और न ही किसी मनुष्य के सदृश कोई साकार शरीर है। हम सभी ने शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाओं को और उनके मध्य बने एक बिंदु को अवश्य ही देखा है। आपने भी देखा होगा। ये 3 रेखाएं परमात्मा शिव के 3 मुख्य कर्तव्य स्थापना, पालना और विनाश का प्रतीक हैं। और साथ साथ शिव परमात्मा त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ होने का भी वे प्रतीक हैं। उन रेखाओं के मध्य बना हुआ बिंदु उनके बिंदु स्वरूप का प्रतीक है। परमात्मा शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव इस शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, अर्थात वे सदा ही कल्याणकारी हैं और अपनी रचना के प्रति सदा कल्याण का भाव रखते हैं। हमें एक बात को समझना होगा कि पूजा आदि की जो भी विधियां हैं उन्हें शंकर जी की मूर्ति पर न करके शिवलिंग पर ही क्यों करते हैं। अब साधारण रीति से यही भाव होता है कि हम उनकी ही पूजा करेंगे जिन्होंने कभी हमारा कल्याण या भला किया होगा। और वैसे भी शंकर जी यानी कि शंकर देवता की मूर्ति तो सदा ही ध्यान मुद्रा में स्थित एक तपस्वी के रूप में दिखाते हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ यही है कि शंकर जी किसी और की तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि तपस्या उनकी की जाती है जो अपने से भी श्रेष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं और उनसे हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तपस्वी शंकर जी के सामने हमेशा एक शिवलिंग रहता है जो शिव परमात्मा का ही प्रतीक है। तो अब इसका सरल सा अर्थ यही हो जाता है कि शंकर जी तो शिव परमात्मा की ही तपस्या कर रहे हैं। इससे यह भी समझ में आता है कि शंकर जी और शिव एक दूसरे से भिन्न हैं और तपस्या करने वाले शंकर जी से शिव जी श्रेष्ठ हैं। परमात्मा शिव की पूजा जिस स्वरूप में की जाती रही है
उसे शिवलिंग कहते हैं, न कि शंकरलिंग। और उनके मंदिर को भी हमेशा शिवालय कहा जाता है, न कि शंकरालय। और तो और हम इस पर्व को कभी भी शंकर रात्रि कहकर नहीं बुलाते, हमेशा शिवरात्रि ही कहते हैं। अच्छा, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग भी मशहूर हैं। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, जो अंधेरे को दूर करता है। उसी प्रकार परमात्मा शिव भी प्रकाश स्वरूप हैं, जो इस घोर कलयुग रूपी रात्रि में विद्यमान अज्ञान के अंधेरे को श्रेष्ठतम परमात्म ज्ञान की रोशनी से दूर कर देते हैं। जो 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उन्हें ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, इस प्रकार से उन्हें नमन किया जाता है। परंतु केवल एक शिव जी ही हैं जिनके लिए शिव परमात्मा नमः कहा गया है। इन तीनों देवताओं के रचयिता होने के कारण उन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, और हम त्र्यंबकेश्वर शिव के रूप में उनकी आराधना करते हैं। परमात्मा शब्द परम और आत्मा, इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या अद्वितीय, तो परमात्मा अर्थात सर्वश्रेष्ठ आत्मा या अद्वितीय आत्मा। अन्य जो कोई भी हैं, उन्हें हम देवात्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा आदि तो कह सकते हैं, परंतु परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा शब्द का प्रयोग यथार्थ रूप से केवल हम एक शिव के लिए ही कर सकते हैं, जो कि सभी देवी देवताओं से श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं। और अपितु यही कारण है कि शिव परमात्मा के अधिकतर मंदिर पहाड़ियों पर अर्थात ऊंचे स्थानों पर स्थित हैं। परमात्मा शिव से हमारा जो संबंध है, उसे भी जानना आवश्यक है। इस विषय की स्पष्टता हेतु हम आपको एक बात की स्मृति दिलाना उचित समझते हैं कि जब भी हम परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, तब उस शब्द के पहले हम परम पिता शब्द का प्रयोग अवश्य ही करते हैं, और दोनों शब्दों को मिलाकर हम परम पिता परमात्मा कह देते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ऐसी महिमा तो हम उनकी ही करते आए हैं। अंतर बस इतना सा था कि हमें उनकी सही पहचान नहीं थी। रचनाकार और रचना के संबंध से वैसे भी परमपिता शिव परमात्मा की हम संतान ही तो हैं। जब भी हम परम शक्ति को ईश्वर, भगवान, खुदा या गॉड कहकर याद करते हैं, तो स्वाभाविक ही हमारी नजरें ऊपर आसमान की तरफ अवश्य ही जाती हैं। वैसे भी हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि परमात्मा की उपाधि कैसे केवल एक शिव के अनुरूप ही सिद्ध होती है। उन्हें हम ऊपर वाला कहकर भी संबोधित करते हैं, अर्थात हमें ये तो पता है कि वे इस दुनिया से परे कहीं दूर की दुनिया में रहते हैं। हाँ, परंतु यथार्थ कहाँ रहते हैं, इसका हमें ज्ञान नहीं था। अब इस विषय को हम गहराई से समझते हैं। हमने 3 लोकों का नाम तो कई बार सुना है, तो आइए इन तीनों लोकों को संक्षिप्त में जानते हैं। हम जिस लोक या दुनिया में रहते हैं, उसे साकार लोक या स्थूल वतन भी कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया 5 तत्वों से बनी है, जो कि सदृश्य रूप में व्याप्त है। इन 5 तत्वों की दुनिया के ऊपर, यानी कि हमारे इस धरती और आसमान से पार एक और लोक है, जिसे आकार लोक या सूक्ष्म वतन भी कहते हैं। ये वही लोक है जहां पर 3 सूक्ष्म देवताएं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का वास है। और इन सबसे ऊपर एक और दुनिया है, जिसे निराकार लोक कहते हैं। इन दोनों लोकों से भी परे होने के कारण इसे परलोक भी कहते हैं। इसी दुनिया में परमपिता परमात्मा शिव का सदा ही वास होता है। इसीलिए इस स्थान को परम धाम कहा जाता है। ये वही वतन या घर है जहां से हम इस पृथ्वी पर अपने अपने समय पर आते हैं। यही परम धाम हमारा मूल निवास स्थान है, इसीलिए इसे मूल वतन भी कहते हैं। जैसे ये साकार लोक या स्थूल वतन 5 तत्वों का बना है, उसी प्रकार ये लोक छठे तत्व ब्रह्म तत्व से बना है, इसीलिए इसे ब्रह्म लोक के नाम से भी जाना जाता है। अब तक हमने जो जाना वो सब परमपिता परमात्मा शिव के एक प्राथमिक परिचय के तौर पर था।
अब हम महाशिवरात्रि के इस पर्व से संबंधित कुछ और रहस्यों को समझते हैं। इस पर्व को परमपिता परमात्मा शिव के इस धरा पर अवतरण को एक यादगार के रूप में मनाया जाता है। परमात्मा को हम बहुत समय से सर्वव्यापी कहकर इसी धरा के निवासी समझते आ रहे हैं। तो यदि ऐसा होता तो फिर उन्हें अवतरित होने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिसे पूरा करने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं? ऐसा कौन सा समय है जब तीनों लोकों में जो परम शक्ति है उनका इस पृथ्वी लोक पर अवतरण होता है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें इस सृष्टि चक्र या काल चक्र को समझना आवश्यक है। इस समय चक्र अथवा सृष्टि चक्र के 4 समान युग हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस अनादि चक्र का न तो आदि है और न ही अंत है। एक युग के बाद दूसरा और फिर तीसरा, चौथा, इस क्रम में ये फिरता ही रहता है। जब कलयुग के अंतिम चरण में चारों ओर चिंता और भय का वातावरण, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, इन बेकारी कृत्यों का राज रोष अनुकरण, विभिन्न कारणों से मनुष्यों में आपसी मतभेद, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, मत्सर आदि पाश्विक वृत्तियों का प्रभाव, इन जैसे धर्मग्लानि के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसा कि वर्तमान समय में चारों ओर दिखाई दे रहा है। ऐसी विपदा के समय पर परमात्मा शिव अवतरित होकर स्वयं का सत्य परिचय देते हैं और साथ साथ इस सृष्टि चक्र का भी संपूर्ण ज्ञान देते हैं। परमात्मा जिस समय अवतरित होते हैं उस युग को गुप्त संगम युग कहा जाता है, जो कि अन्य युगों की तुलना में एक छोटा सा युग है। इसी गुप्त और पवित्र युग में परमात्मा एक साधारण परंतु अनुभवी मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिनका अलौकिक नाम वे प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से श्रेष्ठ ज्ञान देकर मनुष्यात्माओं की कमजोरियों को, विकारी संस्कारों को दैवीय गुणों में परिवर्तित करके उन्हें आने वाली स्वर्णिम दुनिया अर्थात सतयुग के लायक देवी देवता बना देते हैं। इस युग को पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं, क्योंकि इसी युग में साधारण मनुष्यात्माएं उत्तम यानी श्रेष्ठ देवात्माएं बनते हैं। ये जो वर्तमान समय है वो हर मनुष्यात्मा को परमात्मा शिव से सतयुगी राज्य भाग का जन्म सिद्ध अधिकार यानी वर्षा लेने का समय है। हम सारे विश्व की वर्तमान परिस्थितियों से भी परिचित हैं। समय की दिशा और दशा हमें स्पष्ट रूप से संकेत भी दे रही है। इसीलिए परमात्मा शिव द्वारा प्राप्त होने वाले अपने सतयुग के जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात वर्षे को प्राप्त करने हेतु अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से तुरंत संपर्क करें। अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं होगा, यानी टलता जाएगा। टालिए नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार, काबा। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार, काबा पधारे हैं इनमें मेरे शिव बाबा, शिव बाबा। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार, काबा पधारे हैं इनमें मेरे शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा।
क्या गीता का ज्ञान शिव ने दिया? श्रीमद् भगवत गीता परमात्मा का गाया हुआ मधुर गीत है, जिससे मनुष्य आत्माएं सद्गति को प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय वही गीता ज्ञान स्वयं निराकार परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित हो सुना रहे हैं। तो अब हम अर्जुन बन इस सद्ज्ञान का अर्जन करें तथा हमारे मन में चल रही बुराइयों के युद्ध पर विजय प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए पीस ऑफ माइंड चैनल और अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। शिव 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 शिव